Hello 8th class students, welcome in my channel Convergence Point. Today we will discuss exercise 12.1. Firstly we will discuss formulas of this exercise. That is, first formula is a raised to power minus n is equal to 1 over a raised to power n. मीन्स अगर किसी की वैल्यू नेगेटिव में हो, उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में हो, तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. For example, if we have 2 raised to power minus 3, then we can write it 2 raised to power minus 3, then we can write it 1 upon 2 raised to power 3. Means अगर हमारी किसी की पावर नेगेटिव में है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं. क्लियर. इसी तरह सेकंड फॉर्मूला है a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n is equal to a raised to power m minus n. Means if there is a divide sign between two values and base are same, then we can write the power in negative form. Means अगर हमारे पास बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो हम उसकी जो पावर होती है उसको माइनस कर सकते हैं. क्लियर. ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है. थर्ड है a ओवर b रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m ओवर b रेज टू पावर m. मीन्स if we are the value of, for example, I have taken one example 3 over 2 raised to power 2, so we can write it 3 raised to power 2 over 2 raised to power 2. We can solve it. 3 3 is a 9, 2 2 is a 4. This is the answer. Clear. This is the third formula. Now fourth formula is a raised to power m raised to power n. Means एक पावर हमारी अंदर है ब्रैकेट के एंड वन इज आउटसाइड द ब्रैकेट. देन वी कैन मल्टीप्लाइड बोथ ऑफ द पार्ट्स. क्लियर. देन फिफ्थ फॉर्मूला इज ए बी रेज टू पावर m. a b means two values हैं. Here two values, different values raised to power m. Then we can write a raised to power m into b raised to power m. Clear. Now sixth formula is a raised to power 0 is equal to 1. Means if we have any value whose power is 0, then we can write its value is equal to 1. For example, I have taken 5 raised to power 0. We have the value of 5 raised to power 0, then we can write it is equal to 1. Means 5 raised to power 0 का आंसर 1 है, वो 1 के इक्वल होगा. क्लियर. नेक्स्ट सेवंथ है हमारा फॉर्मूला a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n. मीन्स if we have base are same, then the multiplied sign inside the values, then we can add the we can add the parts. पहले हमने जो सेकंड में करा था, अगर डिवाइड का साइन हो तो पार्ट्स को माइनस करते हैं, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो पार्ट्स को प्लस करते हैं. ये आपने याद रखना है. क्लियर. नाउ वी विल डू exercise 12.1. First question is evaluate 3 raised to power minus 2. Let's see. Here the power is in negative form. Then for the first formula, if power is negative, then we can take its reciprocal. Therefore we can write it 1 over 3 raised to power 2. Clear. अब 3 raised to power 2 का मतलब क्या होता है? 3 3 is 9, 1 over 9, 1 over 9 is the answer. Clear. So simple. Now second question is minus 4 raised to power minus 2. Minus 4 raised to power minus 2. Here power is also in negative. Therefore we can write it 1 over minus 4 raised to power 2. अब जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो जो पावर होती है ना वो पॉजिटिव में हो जाती है, तब उसको नेगेटिव में नहीं रखना, पॉजिटिव में रख देना है. अब माइनस 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16. Therefore 1 over 16 is the answer. अब आप कहोगे कि यहाँ पर 16 प्लस का कैसे आया? अब -4 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐड जो होता है वो पॉजिटिव बन जाती है. क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट इज
1/2 रेज टू पावर -3, 1/2 रेज टू पावर -3, अगेन -3 है तो इसका मतलब रेसिप्रोकल करना है। अब देखो ये पहले ही फ्रैक्शन में है तो हम इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सीधा हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 बन जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बन गया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इज द आंसर। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। इसका मतलब क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर को सिर्फ पावर नोटेशन में ही रखना है। पावर नोटेशन का मतलब होता है कि उसको सॉल्व नहीं करना आपने, सिर्फ पार्ट्स में ही आंसर देना है। क्लियर। अब देखो ये नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया हमारा कि अगर बेस सेम है, जैसे मैंने बताया था, इफ बेस आर सेम एंड डिवाइड साइन इनसाइड द वैल्यूज देन वी सबट्रैक्ट द पार्ट्स। अब देखो -4 यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो हम पार्ट्स को माइनस करेंगे। क्लियर। तो ये आ गया -4 रेज टू पावर 5 -8 मीन्स बन गया -3 बन गया। अब यही आंसर है, इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि पावर नोटेशन में आंसर दो। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखो 1/2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2। अब ये तो सो सिंपल क्वेश्चन है, बस और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 2 ज़ा 6, 1/2 रेज टू पावर 6, बस ये आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 रेज टू पावर 4। अब हमने ये भी फॉर्मूला करा है कि अगर बेस सेम नहीं है बट पार्ट्स आर सेम देन हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया, ये देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला था हमारा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है कि a/b रेज टू पावर m है तो हम a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m को कर सकते हैं डिफरेंट। अगर यहाँ पर सेम है, इसी तरह से हमारा बेस जो है वो सेम नहीं है, पावर सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/3 रेज टू पावर 4। क्लियर। एक ही पावर में हम लिख सकते हैं दोनों को। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 3 से 3 कट गया हमारा, तो ये बच गया हमारा, यहाँ हमारे -1 बचा तो 5 1 ज़ा 5, माइनस के 5 आ गए हमारे, माइनस का 5 रेज टू पावर 4, दिस इज द आंसर। क्लियर। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 3 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -10। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, तो हमने क्या करना होता है, तो पावर्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है तो माइनस करने के लिए हमने देखो माइनस करना है, इसलिए माइनस का साइन ब्रैकेट डालकर -10 आएंगे। क्लियर। और इसको बड़ी ब्रैकेट में डाल लो और जो ये वाला 3 है 3 रेज टू पावर 5 ऐसे ही रख दो। अब इसको माइनस करेंगे हम, -7 +10, तो ये बन गया हमारा इंटू 3 रेज टू पावर -5, तो ये बन गया 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर -5। अब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ये ऐड हो गई हैं हमारी, क्योंकि -5 हैं इसलिए -5 हमने ऐसे ही रखनी है, ये ध्यान रखना है, इसको प्लस नहीं कर देना। अब 5 - 3 -2 बन गए, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है। सॉल्व करने को तो हम इसको आगे भी कर सकते थे सॉल्व, बट हमने नहीं करना क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इसको पावर नोटेशन में रखना है। क्लियर। अब हमारे ये सेकंड सम भी कंप्लीट हो गया। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।